morning children. Today we will discuss about the oxidation number first. Last classes we had discussed about the oxidation, reduction, the definitions, and also the classical definition we had discussed, also the definition with respect to the electron transfer taking place, okay, in a particular redox reaction. अभी आज हम है ना ऑक्सीडेशन नंबर क्या है समझेंगे. What is oxidation number? So oxidation number of an element is the charge which an atom of an element has in its ions or appears to have when present in the combined state with other atoms. ऑक्सीडेशन नंबर को हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं. अब ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली व्हेन यू रीड इट यू विल फाइंड व्हाट इज दिस. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द चार्ज व्हिच एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज इन इट्स आयन. सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं सोडियम एटम. देन व्हाट इज द चार्ज ऑफ दिस एटम इन द आयन फॉर्म? व्हाट इज द चार्ज ऑफ the ion of sodium atom? What is the ion of sodium atom? It is Na plus, है ना. Na के ऊपर +1 चार्ज होता है. सोडियम एटम का आयन है, सोडियम एटम का आयन है सोडियम आयन, और उस आयन पे जो चार्ज होता है that is called as the oxidation number of that atom, है ना. So what is it written? Oxidation number of an element is the charge which an atom of the element, so this is your sodium atom, this sodium atom का आयन के ऊपर जो चार्ज है that is called as the oxidation number of that element. Okay, so what is oxidation number of sodium atom? It will be equal to +1. क्लियर. फिर आगे क्या लिखा है? और appears to have when present in the combined state. So in the combined states, let us take NaCl. What is the charge present on Na in NaCl? It will be +1 only, and Cl will carry a -1 charge. तो Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट हम -1 कहेंगे, और Na का ऑक्सीडेशन स्टेट I will take it as +1. So have you followed what is the meaning of this oxidation state? ठीक है. अब there are certain rules for assigning these oxidation numbers. तो one by one we will discuss all the rules. First rule क्या है कि oxidation number of an atom of different elements in their respective elementary states and allotropic form is taken to be 0. जैसे N2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम 0 लेते हैं. इट इज इन द एलिमेंट्री स्टेट वी कॉल दैट वी हैव O2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वी टेक इट एज 0. सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इट इज एक्सिस्टिंग इन इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म. ठीक है. कार्बन इट हैज ऑक्सीडेशन स्टेट 0. ठीक है. डायमंड, ग्रेफाइट, ये सबका ऑक्सीडेशन स्टेट हम 0 लेते हैं. फॉस्फोरस oxidation state we will take it as 0. ठीक है. any element which is in its elemental state or in the allotropic form, then it will be having the oxidation state as 0. Okay, so this is the first rule. First rule is oxidation number of an atoms of different elements in their respective elementary states and allotropic forms is taken to be 0. ठीक है. Second rule is oxidation number or oxidation state. Oxidation number of mono atomic atom is the same as the charge on
its ion. अभी जैसे सोडियम है, सोडियम इज मोनोएटॉमिक, वो इट विल एग्जिस्ट एज अ सिंगल एटम. सो मोनोएटॉमिक है तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इट इज द सेम एज द चार्ज ऑन इट्स आयन. ठीक है, फॉलोड ऑल ऑफ यू. Another one we can take phosphorus. Okay, phosphorus is not monoatomic. Sorry, phosphorus नहीं आएगा. Sorry. Okay. The second rule is oxidation number of the monoatomic ion. Monoatomic ion is the same as the charge on it. जैसे Na plus है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इज द सेम एज द चार्ज ऑन इट. जैसे Na plus है, फॉर एग्जांपल Cl minus. Cl minus चार्ज ऑन इट इज -1 तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl would be -1. ठीक है. और we can have so many other ions जैसे Mg+2 है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गया. Al+3 है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गया. So oxidation number of a monoatomic ion will be the charge which is present on it. तो aluminium ion का oxidation state is +3, magnesium ion का oxidation state is +2. That ठीक है. So first you copy these two rules. The third rule, the oxidation number of hydrogen is +1 when combined with non-metals. Oxidation number of hydrogen will remain as +1 when it is combined with a non-metal, and -1 when combined with active metals. When combined with active metals like sodium, aluminium, पोटेशियम, दे आर ऑल वेरी एक्टिव मेटल्स. ओके, अब जब एक्टिव मेटल्स के साथ कंबाइंड होगा हाइड्रोजन, then it will have a -1 oxidation state, and if the hydrogen is combined with a non-metal, then it will be having a +1 oxidation state. For example, HCl, ये non-metal है Cl. जब Cl के साथ H is combined, here the oxidation state of hydrogen is +1. ठीक है. For example, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होगा. ओके, हाइड्रोजन विल हैव +1 चार्ज. ठीक है. H2O, हाइड्रोजन इज कंबाइंड विथ विच एलिमेंट? इट इज एलिमेंट, नॉन मेटालिक एलिमेंट है, तो इसमें हाइड्रोजन विल हैव अ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है. In a sense, hydrogen will show +1 oxidation state with almost all the elements except the metallic elements, and that also highly active metals like sodium है, aluminium है, potassium है, calcium है, they are all very active metals. उनके साथ जब हाइड्रोजन combined है then it will be
having a -1 oxidation state. जैसे NaH, NaH में Na will have a +1 charge while hydrogen has a -1 charge. Okay, in this case oxidation state of hydrogen is -1. इसको हम मेटल हाइड्राइड कहते हैं. What is this? This is a metal हाइड्राइड. इनके बारे में हमने जब S ब्लॉक एलिमेंट्स लर्न किया था, दैट टाइम वी हैड डिस्कस्ड दिस. ठीक है. और KH या फिर विच इज़ द अदर वन, CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड या एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlH3, all of them will have hydrogen having -1 oxidation state. तो ये तुम्हारा थर्ड रूल हो गया. देन फोर्थ रूल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन. हमने अभी तक कितना डिस्कस किया कि कोई भी एलिमेंट का एटम, अगर एनी एलिमेंट इफ इट इज एग्जिस्टिंग एज एन एलिमेंट्री स्टेट और एज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म, देन इट विल बी हैविंग द ऑक्सीडेशन स्टेट 0. वो हमने डिस्कस किया. सेकेंड हमने ये डिस्कस किया था कि कोई भी मोनो एटॉमिक आयन है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट वही होता है जो उसके ऊपर चार्ज होता है. जैसे सोडियम आयन, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1, बिकॉज उसके ऊपर चार्ज क्या है? +1. थर्ड हम ये बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जब वो नॉन मेटल के साथ जुड़ा है तो +1 होगा, और अगर मेटल के साथ जुड़ा है हाइड्रोजन फॉर्मिंग द मेटल हाइड्राइड, देन हाइड्रोजन विल हैव -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है. नाउ वी कम टू the oxidation state of oxygen. Oxidation state of oxygen. ठीक है. Oxidation state of oxygen, when I say normally, I will write normally oxygen has -2 oxidation state. या ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है नॉर्मली आई विल टेक इट एज -2, बट इन पेरोक्साइड्स, फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल है जैसे Na2O या K2O या H2O या विच इज द अदर वन, NO2. दिस काइंड ऑफ नॉर्मली the oxygen will have -2 oxidation state, but उसमें भी specifically there are few kind of compounds. जैसे peroxides है, peroxides like H2O2, यहाँ पे oxygen carries -1 oxidation state. Okay, -1 oxidation state होता है. Peroxides like Na2O2, यहाँ पे ऑक्सीजन विल हैव -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है. सर्टेन कंपाउंड्स लाइक OF2, यहाँ पे ऑक्सीजन विल हैव अ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +2. क्यों? क्योंकि इन दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव F है और F के ऊपर -1 चार्ज है, तो O के ऊपर +2 चार्ज हो जाएगा. ओके. और यू कैन हैव O2F2, जहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. फॉलोड. सो ऑक्सीजन कैन एग्जिस्ट एज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, या उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, या फिर -2 हो सकता है इन नॉर्मल केसेस. ओके. इन KO2, that is superoxide, it will have an oxidation state of 0.5, -0.5. Okay, so that is also to be mentioned. Followed this. So this is the fourth rule. You can just note down. Fifth rule. Compound formed by union of
metal and non-metal. The metal will always take, the metal always takes positive oxidation state, always takes positive oxidation state, okay, and non-metal will take always the negative oxidation state, and non-metal takes negative oxidation state. For example, NaCl, very common example, NaCl. Na is a metal and Cl is a non-metal. So, Na in this case will always take plus or positive oxidation state and chlorine will take negative oxidation state. Clear? कोई भी metal और non-metal का अगर हम देखें जैसे K और H, K is metal and H is non-metal, तो K plus H minus, Al Cl 3 ले लेते हैं, तो Al is the metal and Cl is the non-metal, तो यहाँ पे Al will take positive oxidation state and Cl will take negative oxidation state. ठीक है, तो Na ये सारे Na, K, Al they are all metals, while Cl, H they are non-metals. ठीक है, जब भी ऐसे कंपाउंड्स है जहाँ पे मेटल और नॉन मेटल का यूनियन हो तो मेटल हमेशा पॉजिटिव लेगा और नॉन मेटल हमेशा नेगेटिव लेगा. ओके, सो दैट इज द फिफ्थ रूल. ओके, देन सिक्स्थ रूल. When two different elements, they are combined to form a compound and those two elements differ in their electronegativities, then what is the situation? है ना? When compounds are formed by different elements having difference in their electronegativities. Then what is the situation? अगर ऐसा कंपाउंड्स है जहाँ पे एलिमेंट्स आर हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, फॉर एग्जाम्पल NH3, एग्जाम्पल NH3, यहाँ पे which is more electronegative? The more electronegative element is N, H is the less electronegative element. So, the more electronegative element will take negative charge and the less electronegative element will take positive charge. तो यहाँ पे क्या difference in their electronegativities? Then the more electronegative element will take negative charge and the less electronegative element will take positive charge. Followed or not? यहाँ पे देखो N it is more electronegative है ना, more electronegative है, ठीक है, and H is less electronegative.
तो N विल बी टेकिंग अ नेगेटिव चार्ज, दैट इज यहाँ पे N के ऊपर -3 चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है. सो नाइट्रोजन विल टेक नेगेटिव चार्ज वाइल हाइड्रोजन विल टेक पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. अभी यही नाइट्रोजन अगर फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है, फ्लोरीन के साथ, तो नाइट्रोजन इन दिस केस, अब ये दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? फ्लोरीन है. सो फ्लोरीन विल हैव नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एंड नाइट्रोजन विल हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. यहाँ पे N के ऊपर +3 चार्ज है और फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है. आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ इट इज? तो N के ऊपर जो चार्ज है ना वो डिफर कर सकता है बेस्ड ऑन विच काइंड ऑफ एन एलिमेंट इट इज बॉन्डेड विथ. अगर वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डेड है तो वो पॉजिटिव चार्ज लेगा, और अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डेड है तो वो नेगेटिव चार्ज ले लेगा. ठीक है. एक और एग्जाम्पल अंडरस्टैंड करते हैं. जैसे देखो CH4, यहाँ पे C और H के बीच में C इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H. H तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है एक्चुअल में. सो C इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो C विल हैव अ नेगेटिव चार्ज हियर एंड हाइड्रोजन विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज. H के ऊपर हमेशा +1 चार्ज रहेगा व्हेनेवर इट इज बॉन्डेड टू अ नॉन मेटल. ठीक है. कार्बन इज अ नॉन मेटल. तो हियर H +1 और ये -4 किधर से आ रहा है? यहाँ से. So what is the oxidation state of carbon here? -4. But again same carbon if it is bonded with chlorine, CCl4, carbon tetrachloride, in that case carbon will acquire a positive charge क्योंकि वो less electronegative है यहाँ पे, और इधर chlorine will have a negative oxidation state. Got it? तो यहाँ देखो, यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है लेकिन यहाँ कार्बन के ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है. वैसे ही हम ऑक्सीजन कंपाउंड्स को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं. H2O, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन OF2 तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है. तो अमंग द टू विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? F. तो मतलब वो नेगेटिव चार्ज लेगा और ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव चार्ज लेगा विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. Similarly here carbon chlorine, carbon will have, among carbon and chlorine carbon is less electronegative, so carbon acquires +4 oxidation state and chlorine acquires negative oxidation state. Okay. Similarly NH3 और NF3 को compare करेंगे तो NH3 में N will have a negative oxidation state, NF3 में N will have a positive oxidation state. One more thing to be noted here is कि always alkali metals have +1 oxidation state. Always alkali metals will have +1 oxidation state, and halogens will have -1 ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली. अभी हैलोजेंस में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है क्योंकि क्लोरीन ऐसा एक एलिमेंट है जो विच शोज -1 +5 +3 +7 स्टेट ऑल्सो. ओके. बट नॉर्मली हैलोजन विल शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स. ठीक है. एंड अल्कली मेटल्स तो हमेशा ही +1 ही रहेगा. Okay. Fluorine only exhibits -1 oxidation state except in HOF where F existed as +1 oxidation state, while rest of every element fluorine will always be having -1 oxidation state. उसमें भी F जो है ना, HOF जो मॉलिक्यूल मैं बोल रही हूँ वो अनस्टेबल होता है, इट इज़ हाईली अनस्टेबल. So these many things you should note, keep in your mind while assigning oxidation numbers to the different elements. ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि next you are going to find out oxidation numbers of the unknown element or for the element which is to be found. So you have to know these rules. So this is the 6th rule. Please note down everyone.
The next rule, in neutral compounds, the sum of oxidation number of all atoms is 0. What is it? In neutral compound. Let us take a neutral compound like water, H2O. Neutral compound है. The sum of oxidation number of all the atoms will be equal to 0. यहाँ पे ये न्यूट्रल कंपाउंड है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है ये मॉलिक्यूल के ऊपर, तो एक्चुअल में उनका जो एलिमेंट्स या एटम्स है उस मॉलिक्यूल में उनका ऑक्सीडेशन नंबर विल ऑलवेज सम अप टू बी इक्वल टू 0. जैसे H है तो +1 चार्ज होगा उसके ऊपर, 2 हाइड्रोजन है इसीलिए 2 × +1 करेंगे, एंड ऑक्सीजन का ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है नॉर्मली व्हेन इट इज बॉन्डेड विथ नॉन मेटालिक कंपाउंड, व्हेन इट इज बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन. Then here what do you see? It is 2 - 2 which is equal to 0. Okay. NaCl न्यूट्रल कंपाउंड है तो इधर +1 -1 will be equal to 0. Understood? Any neutral molecule you take, कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जैसे CO2, it is a neutral molecule. Means neutral molecule का मतलब क्या है कि it does not have a charge on it. So CO2 does not have a charge on it. CO2 molecule मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट शुड कम आउट टू बी इक्वल टू 0. ठीक है. नेक्स्ट रूल, इन कॉम्प्लेक्स आयन द सम ऑफ ऑक्सीडेशन number of all the atoms in the ions is equal to the charge on the ion. जैसे ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है Cr2O7 2-. अब ये आयन के ऊपर चार्ज क्या है -2. तो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम ले तो दैट इज कम्स आउट टू बी +3. ठीक है, +3, 2 का क्रोमियम है इसीलिए 2 मैं लिखूंगी, +7 ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, तो ये इनका जो एडिशन है दैट शुड कम आउट टू बी द ओवरऑल चार्ज ऑन द आयन. तो यहाँ पे देखो आ रहा है कि नहीं, देखो 3 2 6. ओके, प्लस I'm sorry, here chromium will have a +6 charge. ठीक है, +6 charge. I'm very sorry, here chromium should have a +6 charge in this ion. Okay, I'm talking about the charge on this ion. So it should be 6 2 12 होगा. Okay, so 6 × 2 +12 and 7 × 2 -14. So total -2. That is only the charge existing on chromium. ठीक है. So that is how any complex ion you will find that the oxidation state of all the elements when you add it up, it should have a value which is the charge existing on that ion. ठीक है, हम जब करेंगे that time you will, when we are doing the numericals or the problems, then you will understand it better. Then in polyatomic ions the algebraic sum of the oxidation number of all the atoms in the ion is equal to the charge on the ion. Same है, ऐसा ही है. Say for example CO2 2-, हमेशा CO3 के ऊपर -2 चार्ज होता है, SO4 के ऊपर -2 चार्ज होता है. They are polyatomic ions. PO4 3- होता है. ठीक है, तो इन सबका एडिशन जो है ना 4 × -2 plus the oxidation state of phosphorus should be equal to -3. Similarly, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऐड करोगे तो -2 आना चाहिए. ओके, so that is the meaning of this different rules. Okay, now we will try to find out oxidation numbers of the given compound or ion or elements in the compound. Okay, note down. Now calculate oxidation number of ions, molecules, compounds are given to you. You are asked to find the oxidation number. पहले वाले में oxidation number of phosphorus in Na3PO4, that is sodium phosphate.
ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, जिसका फाइंड करना है ना उसका हम x सब्सटीट्यूट करते हैं। अब दिस इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल मतलब इन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड करेंगे तो इट शुड कम आउट टू बी इक्वल टू 0. ओके, सो लेट मी टेक द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ phosphorus as x. How many sodium are there? There are 3 sodium atoms. ठीक है, और सोडियम इज एन एल्कली मेटल, मतलब उसके ऊपर हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही रहता है. सो Na इंटू Na का 3 Na है, देयरफॉर 3 इंटू +1 प्लस नेक्स्ट इज फॉस्फोरस, उसका हमें फाइंड करना है, लेट इट बी x प्लस हाउ मेनी ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, ईच ऑक्सीजन कैरीज -2 चार्ज, ओवरऑल चार्ज इट इज 0, सो देयरफॉर 0 विल बी इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा 3 प्लस x -8 इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू, दिस विल बिकम -5, उस तरफ जाएगा तो +5. देयरफॉर phosphorus has oxidation state +5. Clear? Okay. Now N in NH4 twice SO4. अभी N का फाइंड करना है. कितना N है? When I see this way, it is 2, तो 2x ले लेंगे, ठीक है, प्लस हाउ मेनी हाइड्रोजन टोटल, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू +1, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है वेन एवर इट इज बॉन्डेड टू अ नॉन मेटल, ठीक है, N इज अ नॉन मेटल नाइट्रोजन, प्लस S. अब यहाँ पे S इज ऑल्सो अ एलिमेंट विच हैज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है, तो S के ऊपर यहाँ पे व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट वी मे नॉट नो. फॉर दैट व्हाट कैन वी डू, वी कैन डू वन थिंग. देखो NH4 ट्वाइस लिखा है, NH4 के ऊपर व्हाट इज द चार्ज एग्जिस्टिंग, ऑलवेज इट विल बी +1. ये भी तुम याद रखना कि NH4 के ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और SO4 के ऊपर हमेशा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है. इसके अकॉर्डिंगली भी फाइंड कर सकते हैं व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ N, और यू कैन फाइंड आउट फर्स्ट S का ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस थिंग. SO4 के ऊपर -2 है, मतलब x प्लस -8 विल बी इक्वल टू -2. -8 कैसे मिला, 4 इंटू -2 -8, सो x विल बी एग्जिस्टिंग एज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो यहाँ पे +6 प्लस 4 into -2 equal to 0. So you will get what is the oxidation state of N. So it is 2x plus 8 plus 6 minus 8 equal to 0. So 8 or 8 cancel and you will have 2x is equal to -6. You will get 2x is equal to -6. So x is equal to -3. उसी तरह से यहाँ पे भी देखो NH4 प्लस है ना, NH4 प्लस है तो x प्लस 4 इज इक्वल टू +1, सो x इज इक्वल टू -3. दोनों तरह से हमें -3 ही मिलता है. ओके, सो दैट इज वे यू विल फाइंड इट, आइदर दिस वे और यू कैन यूज दिस वे, ठीक है. देन P in H3P2O7 माइनस, ओके, इट्स एन आयन. अगेन H3 है, मतलब 3 इंटू +1 करेंगे प्लस 2 इंटू x करेंगे, बिकॉज फॉस्फोरस वी हैव टू फाइंड, देयर आर 2 फॉस्फोरस, सो 2 इंटू x प्लस 7 इंटू -2, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, इक्वल टू -1, ओवरऑल चार्ज इज -1. सो दैट विल बी 3 प्लस 2x minus 14 equal to -1. This will become -11, that is 2x is equal to 10 मिलेगा and x is equal to +5 मिलेगा. That is phosphorus का oxidation state will be +5. Followed? Then Cl in ClO4 minus. तो x ले लेंगे Cl के लिए, 4 into -2 equal to -1, ओवरऑल चार्ज -1 है, इक्वल टू -1 करेंगे, सो x माइनस 4 2 सा 8 होता है, इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू +7 मिलेगा. सो यू कैन सी क्लोरीन एग्जिस्ट एज +7 इन
ClO4 minus ion. Followed? So that is how you are supposed to find the oxidation states. ठीक है? Next, Fe in FeCN6 4 minus. So FeCN6, यहाँ पे एक बात ध्यान रखने का, जैसे हम बोलते थे कि SO4 में ऊपर 2 माइनस है, चार्ज रहता है, वैसे ही Cn के ऊपर -1 चार्ज होता है हमेशा. Always whenever we say Cn as an ion, Cn will always have a -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो अभी तो इजी हो गया, Fe का x ले लेंगे, 6 into -1 equal to -4. So x will be -6 equal to -4, that is x is equal to +2. Clear? Mn in KMnO4 बोला है, Mn in KMnO4. So x प्लस K के ऊपर हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है क्योंकि वो अल्कली मेटल है. +4 into -2. Overall charge it is 0, so you put it equal to 0. So therefore x +1 -8 equal to 0. So x is equal to 7. So Mn in KMnO4 has an oxidation state of +7. ठीक है? अगर यही चीज़ मैं ऐसे बोलूँ, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn in MnO4 माइनस. MnO4 माइनस किधर से मिलता है? KMnO4 से ही मिलता है. तो इसमें अगर देखोगे तो वो भी सेम ही आएगा, x +4 into -2 equal to -1. So x -8 is equal to -1 and x is equal to +7 मिल जाएगा. Both ways you can see how it is occurring. Okay, so this is how you are asked to calculate the oxidation number of the element in a compound, in an ion. Okay, note down. Now let us understand oxidation reduction in terms of oxidation number. With the help of example, I will try to make you understand. Okay, Zn reacts with HCl, giving you ZnCl2 plus H2. ये रिएक्शन तुमने लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा, रिएक्शन ऑफ जिंक विथ HCl. सो ये पर्टिकुलर रिएक्शन हम ले लेते हैं एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड विच ऑफ द पार्ट या विच हियर Zn is getting oxidized or whether Cl is getting oxidized. Okay, we will try to find out that. ठीक है, उसके लिए पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने का. अब Zn एलिमेंटल फॉर्म में है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? हमेशा 0 रहेगा. ठीक है, H नॉन मेटल एलिमेंट के साथ है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा. क्लोरीन विल बी हैविंग -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि H +1 है तो क्लोरीन -1 ही होगा क्योंकि वो एक न्यूट्रल कंपाउंड है. अब यहाँ पे Zn जो है, इट इज हैविंग व्हाट ऑक्सीडेशन स्टेट? यू हैव टू फाइंड आउट. Cl नेगेटिव, Cl माइनस में एग्जिस्ट करता है, सो x +2 into -1 it is equal to 0. therefore Zn will have oxidation state as +2. तो यहाँ पे Zn का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2, Cl का -1 ही है और ये एलिमेंटल फॉर्म है, मतलब वो ऑक्सीडेशन स्टेट उसका 0 हो जा रहा है. ठीक है, सो नाउ जस्ट ऑब्जर्व, Zn जिसका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इट इज गोइंग फ्रॉम 0 to +2, मतलब यहाँ पे देयर इज एन इंक्रीज इन oxidation number. There is an increase in the oxidation number. Okay? जबकि हाइड्रोजन जो कि यहाँ +1 था, वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, मतलब यहाँ पे देयर इज अ रिडक्शन इन द ऑक्सीडेशन नंबर. रिडक्शन हुआ कि नहीं? +1 से वो 0 हो गया, सो देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है,
तो जहां पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट इज ऑक्सीडेशन, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। और जहां डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे what is getting reduced and what is getting oxidized? Zn is getting oxidized and hydrogen is getting reduced. Cl का क्या ऑब्जर्वेशन है? देखो यहाँ पे भी Cl -1 है, यहाँ पे भी Cl -1 है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है. दे आर कॉल्ड एज स्पेक्टेटर आयंस. देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दोज आयंस. ठीक है, तो दैट इज हाउ इट इज. ओके, we can take one more example and try to understand. H2 plus Cl2 giving you 2HCl. ओके, यहाँ पे H2 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, Cl2 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है. क्यों? क्योंकि दे आर इन देयर एलिमेंट्री स्टेट्स. So therefore H2 Cl2 0 है. लेकिन यहाँ पे H will exist as +1 oxidation state and Cl will exist as -1 oxidation state. So H2 undergoes reduction or increase in the oxidation number. It's going from 0 to 1. So therefore increase in oxidation number. Therefore ये oxidation हो रहा है. ठीक है, Cl2 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से वो -1 पे चला गया. सो देयरफॉर दिस इज रिडक्शन. देयर इज अ डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर. आर यू फॉलोइंग? सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज दैट रिएक्शन where there is increase in the oxidation number of the element, and reduction reaction is that reaction where there is a decrease in the oxidation number of the element. Okay, so that way you can define oxidation and reduction on the basis of the oxidation numbers. ठीक है, तो ऐसे 2 examples we have seen. One more example we can see. See, KNO3 decomposes to KNO2 plus O2. अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 रहता है. ओके, पोटेशियम का +1 हो गया, इधर भी पोटेशियम +1 ही है. नाइट्रोजन फाइंड आउट ऑक्सीजन -2 होगा, यहाँ ऑक्सीजन 0 है. यहाँ KNO3 में N का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? इट इज़ 1 + X + 3 × -2 इट विल बी -6. ओके, -6 = 0 है. सो X विल बी इक्वल टू 5. मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है. ओके, यहाँ देखो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? X + 1 + 4 -4 होगा. X + 1 + -4 = 0 है. सो X विल बी इक्वल टू 3, यानी यहाँ पे +3 हो जा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट. तो क्या फ़र्क दिख रहा है? यहाँ +5 से +3 में गया. नाइट्रोजन हैज़ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हियर एंड हियर नाइट्रोजन हैज़ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीजन यहाँ -2 था, तो -2 से यहाँ पे 0 पे चला गया. तो ये हो गया तुम्हारा -2 से 0, मतलब इंक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन नंबर. सो दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज ये ऑक्सीडेशन हुआ. ठीक है, और यहाँ +5 से +3 मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. देयरफॉर दिस इज रिडक्शन. Clear? Okay, so this is how you can understand oxidation reduction in terms of oxidation number. I hope all these topics are clear with you. Today I'll give you some molecules
where you have to find the oxidation numbers. Okay. First and foremost, in the textbook, all the rules you revise first. It's given in the textbook also, all the rules. So, go through all the rules, watch the video, then find out the oxidation number of the given compound or ion. Okay. Thank you.